Assalamu alaikum dear students. زه کوشش کوم چې زه تاسو ته کورس کنټینیو کوم څومره چې کیږي یو لیکچر ریکارډ شو. this is the second lecture. چونکه ډیر ګران کار دی خو بهر we have to do it. Now we move on to the frameworks. Okay, the frameworks of SLA چې کوم بنیادی frameworks SLA کې راغلي دي. Now obviously interest in second language learning, that is very emergent and very important, and different linguists and psychologists, they have been trying to know this factors but mostly if you look at this, normally the use dates back to many centuries but it is only since 1960s agar aap dekh le to scholars have formulated to 1960s se onwards jo hai na ye systematic theories or models of to address the basic questions in the field of SLA. 1960 onwards exactly do framework of مختلف چیزونه مطلب in a nutshell موږ دا وایو چې کله Chomsky actually دا framework in fact راغی او د چې کله بیرت سکینر دلی هغه کوم خیالات هغه چیلنج کړل نو د هغې نه بعد یو انقلاب ورته راغی او further په دې کې دا continuation راغی. څنګه چې as I told you in the previous chapters, as you can see there, that what exactly does the second learner know. یعنی هغه درې questions چې کوم موږ ولګي کړي, how does learner acquire this language, and why some learners are more successful than others. Actually already that discussed شوي دي مخکې. The different approaches رالل obviously او دا approaches چې دي نو دا تاسو وګورئ دا language چې دی دا یو comprehensive سیز دی نو دا ته په یو سیز نشي بیس کولی نو دا frameworks actually چې رالل نو دا ټول بیس په linguistics باندې بیس شو په psychological رالل social frameworks شول او بیا د دې مختلف کم چې دي aspects چې دي که نه مختلف چپټر کې انشاءالله ډسکس شوي دي موږ به خو د دې په منځ کې actually لکه د linguistics یا psychological یا even social کم frameworks چې دي که نه دې منځ کې باقاعده یو لنک دی تو د لینگویج داسې لینگویج یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس یہ پڑھا کوئی مطلب الماری میں کوئی چیز ہو اور جن کو آپ نکال کے وداؤٹ دی افیکٹ یا انفلوئنس آف ادر فیکٹرز یو جسٹ گیو اٹ ٹو سمبڈی ایلس. یہ ایسا نہیں ہے. یہ بڑا لینگویج جو ہے نا یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے. یہ ایل ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی اور ایس مطلب یہ جو فریم ورکس آئے تھے اس ٹرائنگل کے تحت آ گئے تھے کہ لنگوسٹکس سائیکولوجیکل اور ایون سوشل. یہ اس ٹرائنگل میں آپ کو پتہ ہے کہ لینگویج اور یہ ایکوزیشن جو بھی ہے یہ ڈیولپ ہوتا ہے. سو اوبویسلی آپ نے ان تمام فیکٹرز کے اوپر جو ہے نا وہ یو ہیو ٹو لک ایٹ دیم. پھر اس میں امپورٹنٹ جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہے جو اوبویسلی جنہوں نے SLA اپروچز کو انفلوئنس کیا ہے یہ مختصراً یہ نیچے جو فگر ہے مطلب یہ فریم ورک آف SLA یہ تھوڑا سا ہم یہ فگرز جو ہے نا جس میں تینوں وہ دی گئی ہے ہم ان کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں آنے والے چپٹر میں ڈسکس کر لیں گے لیکن اس کے لیے میں بیس بنا رہا ہوں تاکہ آپ ان کو سمجھیں. I'm trying to make a base for it so that you can understand them better. Alright, تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ سیکوینسز میں یہ آ رہے ہیں کہ لیکن prior to 1960s جو تھا انٹرسٹ L2 لرننگ تھا لیکن وہ خاص کر فورن لینگویج کنسرنس تھے. یعنی 1960 سے پہلے جو کنسرن تھا وہ فورن لینگویج لرننگ کا اوپر زیادہ تھا. لیکن اب جو ڈومیننٹ ماڈل ہے تھرو وچ 1950 واز یہ اسٹرکچرلزم تھا. ٹھیک ہے, بلوم فیلڈ کا جس نے جو ایمفیسائز کرتا تھا ایکچولی مطلب ڈسکرپشن آف ڈفرینٹ لیولز آف پروڈکشن. اس میں میں آ رہا ہوں لیکن پہلے آپ کو میں تھوڑا سا یہ جلدی یہ بتاتا چلوں کہ فریم ورکس فار اسٹڈی آف SLA آپ دیکھ لیں کہ ٹائم لائن اس کا 1950 یا بیفور جو تھا یہ وہ اسٹرکچرلزم تھا. اسٹرکچرلزم پہ بہت زیادہ فوکس دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اس کا سائیکولوجیکل جو ایسپیکٹس تھے وہ تھے بیہیویئرزم اور اس کی جو سوشل مطلب تھے وہ سوشل کلچر تھیوری تھی 1950s میں بھی
और 1960s में ये ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर ने आके जो है ना वो इनकलाब बर्पा किया। इसका साइकोलॉजिकल साइड न्यूरो लिंग्विस्टिक्स या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे बहुत जोर साइकोलॉजिकल साइड पे था, और ख़ासकर जो सोशल साइड इसका यानी 1960s में तो एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन और इस तरह वेरिएशन थियोरी आ गई। 1960 में फंक्शनल आ गया, ह्यूमनिस्टिक मॉडल्स आ गई, एक अकल्चरेशन थियोरी और अकोमोडेशन इसके सोशल साइड पे थी। और ये 1980 से अनवर प्रिंसिपल एंड पैरामीटर चूँकि चॉम्स्की इस पर कंटिन्यू रहा। फिर कलेक्शनिज्म इसका साइकोलॉजिकल मतलब साइड पे कि माइंड के साथ एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर, और मतलब सोशल साइकोलॉजी। और अब जो एक्चुअली आखिरी आया है और भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं, दैट इज़ 1990 से आप देख ले तो ये मिनिमलिस्ट प्रोग्राम है जो प्रोसेसिबिलिटी वगैरह, ये इस पे वो काम है। मैं थोड़ा सा जिस तरह आपको स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बता रहा था कि ब्लूमफील्ड और उनकी स्कूल ऑफ थॉट, तो इसमें ये फोनोलॉजी, साउंड सिस्टम, मॉर्फोलॉजी, कंपोजिशन ऑफ वर्ड्स, सिंटैक्स, ग्रामेटिकल रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स, इस तरह ऑर्डरिंग, एग्रीमेंट, सेमेंटिक्स एंड लेक्सिकॉन, वोकैबुलरी, ये इसमें स्ट्रक्चर साइड पे इन ही चीज़ों के ऊपर काम करता था। और यहाँ पे जो कॉग्निटिव जो इन्फ्लुएंशियल मॉडल लर्निंग का था वो एक्चुअली लैंग्वेज एक्विजिशन that was applied to language acquisition at the time of behaviorism, यानी behaviorism और ख़ासकर जो बीफ स्किनर जो थे बेसिकली इसके खालिक थे, जो कि इस नोशन पे हैबिट फॉर्मेशन की नोशन पे वो बहुत ज़्यादा जोर देती थी। चूँकि टाइम एंड अगेन हम चूँकि SLA में ऑब्वियसली हम टाइम अगेन इन कॉन्सेप्ट्स को आगे पीछे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये LP और मतलब ये एक ट्रायंगल है, तो हम ये कॉन्सेप्ट्स को आगे पीछे अगर शुरू में हम डिस्कस कर सकते तो आखिर में हम भी डिस्कस करेंगे। तो उनका बेसिकली फोकस पे हैबिट फॉर्मेशन था, और इसका बुनियादी तौर पर जो कि उनका ख्याल ये था कि हैबिट फॉर्मेशन से जो है ना वो जो रिजल्ट आता था वो SSR था। SSR से मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिवार्ड, यानी मतलब उन्होंने ज़्यादातर आपको पता है इस दौर में लैंग्वेज लर्निंग वगैरह से एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स पे की गई थी, तो जिनमें ये ज़्यादा था, तो उन्होंने इनको लैंग्वेज पे भी वो किया। तो उनका बेसिक बुनियाद ये था कि SSR में स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिवार्ड स्टिमुली, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट से सब कुछ वो आते थे कि इनका लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट, इनका इनपुट जो है ना वो लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट इनपुट से ही आता है। फिर रिस्पॉन्सेस उन स्टिमुलॉई का क्या आता था, और फिर रीइंफोर्समेंट। तो ये रिस्पॉन्सेस इससे फिर मतलब क्या हो जाता कि मिसाल के तौर पर वो लैंग्विस्टिक इनपुट ले लेती थी, फिर उनका रिस्पांस आता था, फिर उस रिस्पांस को मदीना उनको रीइंफोर्समेंट किया जाता था कि ये ठीक है ठीक नहीं है। तो ऑब्वियसली उनका ये ख्याल था कि डिज़ायर जो है ना, डिज़ायर मतलब जो आउटकम उनका, फिर रिपीटेड SSR सीक्वेंस भी वो कहते थे कि लर्निंग आ जाती है, यानी जितना आप स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस रिस्पॉन्स के पेरेंट देंगे उतना ही वो हैबिट बनेंगे। तो इसी तरह से आपका वो है द इंटरसेक्शन ऑफ दोज टू मॉडल ऑब्वियसली फॉर्म फ्रेमवर्क फॉर द आइडियोलिंगुअल मेथड। फिर इसी तरह से ये मेथड्स आगे आइडियोलिंगुअल मेथड्स, मतलब जो कि ड्रिल बेस्ड चीज़ें, जितना आप चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसमें ड्रिल इन्वॉल्व करेंगे, ऑडियो और लिंगुअल दोनों को आप जब मिलाएंगे मतलब, तो इसी से बड़ा इफेक्टिव जो है ना ये अप्रोच जो था उसका टीचिंग ये एम्फेसाइज करता था रिपीटिशन और हैबिट फॉर्मेशन पे, जो कि तकरीबन दुनिया में तकरीबन 90 तक ये बड़ा ये अप्रोच जो आइडियोलिंगुअल है, जो हैबिट फॉर्मेशन और प्रैक्टिस के बेस पे है, ये प्रैक्टिस रहा। हालांकि अभी ये सेकंड लैंग्वेज पे नहीं अप्लाई किया गया था। विगोस्की उसका जो था सोशल कल्चर थियोरी 1962 मतलब इसका था ट्रांसलेशन, ठीक है। चूँकि ये थियोरी बाय मिड सेंचुरी इसका बुनियादी फोकस किया था इंटरेक्शन पे कि दूसरे लोगों के साथ किस तरह इंटरेक्शन कीजिए, और ये दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन किस तरह आपकी लैंग्वेज लर्निंग
प्रोसेस में रोल अदा करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं अभी थोड़ा मैंने डिस्कस किया, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि माइंड से हम निकल रहे हैं, सोशल की तरफ भी आ रही है और मतलब कुछ, तो ये भी अब भी ये इन्फ्लुएंशियल है इस एलए अप्रोचेस में कि जो कि कंसर्न करते हैं कि इनपुट, देखो इनपुट और इंटरेक्शन का रोल कहाँ तक है, समझ आ गई। मतलब ऑब्वियसली कि माहौल का एक बुनियादी फैक्टर है, तो इसने एक रोल अदा करना भी है। लेकिन थोड़ा अब हम आते हैं कि लिंग्विस्टिक्स में बुनियादी तौर पर, जिस तरह मैंने पहले बताया कि लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजिकल और सोशल, ये तीनों एक ट्राइंगल है, इसके तहत जो है ना वो हम काम कर रहे हैं। तो बेसिकली दो फोसियाई मीन्स दिस इज द प्लूरल ऑफ फोकस, ओके, फॉर द स्टडी ऑफ एसएलए फ्रॉम लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव। लिंग्विस्टिक पर अब इसके दो पर्सपेक्टिव है, यानी लिंग्विस्टिक्स के जो 1960 से अभी तक है। इंटरनल, एक इसका इंटरनल फोकस है और दूसरा एक्सटर्नल है। इंटरनल फोकस जो है ना, ये बुनियादी तौर पर नोम चॉम्स्की और उनके फॉलोअर्स, आपको पता है वो इंटरनली उन्होंने कहा है, कुछ लैंग्वेज को देख के उनकी बुनियाद पे उन्होंने एक इंटरनल कुछ मॉडल्स वगैरह दी है। और इससे मुराद जो है ना, फिर हम क्या कहते हैं कि ये जो बच्चे बोल लेते तो उनका सारा मैकेनिज्म और सारा चीज़ जो है ना वो इंटरनल है, इंटरनलाइज्ड है, वो यानी पैदाइशी तौर पर उनके जहनों में है कुछ जिसकी बुनियाद पे वो करते हैं, और ये अंडरलाइंग नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है उनकी अंदर है। और इसको उन्होंने फिर क्या कहा है, उन्होंने इसको लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कहा है कि ऑलरेडी इंटरनली उनको ये जेनेटिकली मतलब प्री प्रोग्राम्ड उनमें एक लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस रखा है, जब बजाय कि उसके सरफेस फॉर्म्स को, जो कि उन्होंने सरफेस फॉर्म को जो कि स्ट्रक्चरलिज्म में डिस्कस हुआ है, वो सरफेस फॉर्म को छोड़ के वो इंटरनल साइड पे गए हैं। अब अच्छा, इसका जो लिंग्विस्टिक्स का एक्सटर्नल फोकस है फॉर एसएलए पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो लैंग्वेज, वो जब इसका एक्सटर्नल फोकस को हम लेके, तो ये बुनियादी तौर पर लैंग्वेज यूज के ऊपर जो है ना ये काम करता है, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज के फंक्शंस क्या है कि कहाँ पे होते हैं, और जो किस तरह वो लर्नर जो है ना वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में किस तरह वो उनको रियलाइज करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इंटरनल फोकस के ऊपर आते हैं कि जो इंटरनल फोकस है, ये फर्स्ट लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क इंटरनल फोकस है जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर भी कहते, जो चॉम्स्की ने मतलब दिया था। इसका जब ये ऑब्वियसली मैं टाइम अगेन आपको कहता हूं कि इस काम ने आके लिंग्विस्टिक स्टडीज को मतलब और थियरीज को रेवोल्यूशनाइज किया, इनकलाब बर्फा किया इस थियरी ने। और इसका ऑब्वियसली दोनों मतलब जो फर्स्ट लैंग्वेज है या जो सेकंड लैंग्वेज है, इन दोनों के ऊपर जो है ना इसका बड़ा इफेक्ट है। बल्कि चॉम्स्की argued convincingly that behaviorist theory of language is wrong. उन्होंने convincingly कहा कि जो behaviorist का जो language acquisition का theory है वो wrong है, क्योंकि it cannot explain the creative। अब इस बात को जरा गौर से फोकस करो, क्योंकि ये जो acquisition खासकर जो उनका है, ये cannot explain the creative aspect of our linguistic ability, क्योंकि ये हमारे जो लिंग्विस्टिक एबिलिटी का क्रिएटिव एस्पेक्ट है वो इसे, क्योंकि वो तो ज़्यादा उनका तो सिंपल फोकस है कि जितना इनपुट उतना ही आउटपुट। तो बड़ा क्वेश्चन ये इस पे आ जाता है, जिस तरह मैंने ऊपर डिस्कस किया कि पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस कि अच्छा, आप उसके बारे में फिर क्या कहेंगे कि जो बच्चे को नहीं सिखाया गया लेकिन उससे दुगना तिगना और 3-4 गुना ज़्यादा आ जाता है, तो वो कहाँ से आता है? तो फिर उनके साथ इनका जवाब नहीं होता। तो वो ऑब्वियसली उनका जो है ना लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ, ही कॉल अटेंशन टू द लॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, कि उन्होंने लॉजिकल प्रॉब्लम इस पे हमने डिस्कस किया पहले, ठीक है, जो कि क्लेम करता है कि मतलब चिल्ड्रन
इनेट कैपेसिटी के साथ वो स्टार्ट करते हैं, जो कि ऑब्वियसली उनमें बायोलॉजिकली एंडाउड है। मतलब इसमें किसी का कोई कमाल नहीं, कोई किसी को नहीं दे सकता, लेकिन बायोलॉजिकली वो इससे यानी उनमें ये इनेट कैपेसिटी जो है ना, टाइम एंड अगेन हम बात करते हैं, तो ये इसकी इस इनेट कैपेसिटी के साथ ये पैदा होते हैं। सो दीज व्यूज हैव डोमिनेटेड मोस्ट लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन एसएलए। तो प्रेजेंट डे तक इस जो है ना, अभी तक इसका बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ना वो इम्पैक्ट है इवन एसएलए स्टडीज पे, इवन आज तक। फिर उन्होंने प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स और मिनिमलिस्ट प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया, और इसी तरह ये स्टार्ट हो गया जो चॉम्स्की ने, मतलब प्रिंसिपल्स एंड पैरामीटर्स मॉडल और फिर मिनिमलिस्ट प्रोग्राम, और ये कंटिन्यू रहा। स्पेसिफिकेशन जिसमें ऑब्वियसली इनेट कैपेसिटी है लैंग्वेज एक्विजिशन में, जो कि उन्होंने रिवाइज, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ही स्टार्टेड रिवाइजिंग इट, यू नो, कि इसमें और भी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट नोशन जो है ना वो क्रिएट करे, और कंस्ट्रेंट्स जो कि तमाम लैंग्वेजेस में कॉमन है इस पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रामर, यानी इसमें जो प्रिंसिपल्स और कंस्ट्रेंट जितना भी है, तो उन्होंने चॉम्स्की ने इसके ऊपर वो काम किया, और काम अभी तक भी और भी लोग इस पे लगे हुए हैं, ठीक है। फिर एक्सटर्नल जो फोकस है बेसिकली लिंग्विस्टिक्स का, जो आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क जो है ना वो फंक्शनलिज्म के अंदर आता है, जो तकरीबन अर्ली 20th सेंचुरी, और इसके रूट्स तकरीबन प्राग स्कूल ऑफ ईस्टर्न यूरोप में, मतलब वहीं से काम शुरू हुआ है। ये चॉम्स्की फ्रेमवर्क से ऑब्वियसली डिफरेंट करती है। इनका एम्फेसिस क्या होता है कि फॉर्मेशन कौन के ऑटरेंस की फॉर्मेशन किस तरह बनते हैं, और इन कंसिडरिंग लैंग्वेज प्राइमरी, और इनका बुनियादी तौर पर एक्चुअली लैंग्वेज फंक्शनलिज्म का बुनियादी फोकस क्या है, वो है जनाब कम्युनिकेशंस, अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ उसमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस दुनिया की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में वो निकालते हैं, और उनको सीक्वेंस और रिलेटिव डिफिकल्टीज जो है ना उनको सीक्वेंस वाइज करते हैं कि उनमें क्या क्या डिफिकल्टीज है, लर्निंग के लिए क्या डिफिकल्टीज वो कर सके। कुछ लोग जो है ना वो इस बात पे जोर देते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है ना ये बेसिकली एक प्रोसेस है लिंग्विस्टिक्स फंक्शंस फॉर्म्स, उन लिंग्विस्टिक फंक्शंस और उनकी फॉर्म्स के दरमियान, और फिर ये कम्युनिकेटिव नीड जो आ जाता है उसकी बुनियाद पे ये आ जाता है। और कुछ का ख्याल है कि लर्नर जो है ना वो L2 में जब वो इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर करते हैं और किस तरह वो एक्विजिशन के साथ रिलेट करते हैं, यानी इनका अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो एक्सटर्नल लिंग्विस्टिक्स का जो एक्सटर्नल फोकस रहा है, तो बेसिकली वो कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का किस तरह लैंग्वेज एक्विजिशन के साथ वो लिंक करते हैं कि कम्युनिकेशन नीड्स क्या है, कौन से फैक्टर्स है जो कम्युनिकेशंस को इफेक्टिव बना रहे थे, फिर ये कम्युनिकेशंस किस तरह जो है ना इंफॉर्मेशन को L2 प्रोडक्शंस में और किस तरह ये एक्विजिशंस के साथ रिलेट करते हैं। तो इस पे ऑब्वियसली फंक्शनल फ्रेमवर्क्स जो है ना उन्होंने यूरोपियन स्टडी ऑफ SLA को काफ़ी डोमिनेट किया है, और इनको दुनिया में फॉलो भी किया जा रहा है कि उनका भी बड़ा वर्क है। अब जो सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया है कि लैंग्वेज, मैंने जिस तरह बताया कि ये कोई एक्सटर्नल फिनोमिनन नहीं है या कोई ठोस चीज़ है कि हम आपको दे दें, तो इसमें साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी हम लैंग्वेज एक्विजिशन वगैरह को डिस्कस करते हैं। तो साइकोलॉजिकल इसमें 3 फोसियाई है फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी इसमें लैंग्वेजेस इन द ब्रेन है, लर्निंग प्रोसेसेस है और लर्नर डिफरेंसेस है। ये ज़रा आप देख रहे हैं कि साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स है वो लैंग्वेज ब्रेन है, लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेसेस है, किस तरह लैंग्वेज, और ये है मतलब लर्निंग डिफरेंसेस। बल्कि इनको अगर हम मुख्तसरन मतलब डिफाइन करें तो हम LB यानी लैंग्वेज ब्रेन, ये याद रखो, ठीक है। इनको अगर इनको आप एब्रीविएट फॉर्म में यूज करेंगे ना, तो काइंडली आप
उनको एलाबोरेट क्या करें, क्योंकि ये मैं आपके लिए अभी थोड़ा सा लैंग्वेजेस साइकोलॉजिकल फोकस के बारे में और लैंग्वेज LP लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, और लैंग्वेज लर्नर डिफरेंसेस कि ये क्या है। तो साइकोलॉजिकल जो फोकस है बेसिकली SLA का, तो ये यहाँ पे लैंग्वेज ब्रेन ऑब्वियसली कि लोकेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इन द ब्रेन, ये ज़्यादातर बायोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का 19वीं सेंचुरी से रहा है, और उन्होंने इस फील्ड को थोड़ा सा न्यूरो लिंग्विस्टिक्स में जाके ये पहुँचे हैं अभी, और ये उनका कि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का SLA पे क्या असर है, और हम ये लेकिन इनकी जो स्टडी है वो तकरीबन 1960 से अनवर्ड शुरू हुई। लेनबर्ग 1967 में उन्होंने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले ली उसमें, और उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए कि बाकायदा देयर इज क्रिटिकल पीरियड होता है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, जो कि न्यूरोलॉजिकल बेसिस पे होता है। मतलब ये ज़्यादा मच एज रिलेटेड ऑन SLA एसेंशियली इस थियरी, इस फ्रेमवर्क में एज का बड़ा फैक्टर है। ठीक है, हम यानी क्रिटिकल पीरियड के बारे में वो बात करते हैं ना, तो ये लेनबर्ग एक्चुअली 1967 में वो बात है। यानी इसमें लैंग्वेज ब्रेन काफ़ी रिसर्च की, ये कहाँ पे लोकेट होता है, कैसे होता है, लैंग्वेज में कैसे होता है, लेकिन इसके साथ साथ फिर न्यूरो लिंग्विस्टिक्स की, और इसका फर्स्ट इन्फ्लुएंस जो है ना वो ऑब्वियसली 1960s में लेनबर्ग जो, और वो एज को एक क्रिटिकल फैक्टर मानता है। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में चैप्टर 4 में इंशाल्लाह इनको पढ़ेंगे, और इसके साथ कैसे मतलब क्या एक्सप्लोरेटरी प्रोसीजर एसोसिएटेड विद ब्रेन सर्जरी एंड मल्टीलिंगुअल पेशेंट्स as well is the development of modern non-invasive imaging techniques are dramatically increasing knowledge। तो ये मिसाल के तौर पर कि ये सर्जरी और मतलब ये इमेजिंग कुछ आ गई है, तो ये भी इस फील्ड में जो है ना वो बड़ा वो अहम रोल अदा कर रहा है। फिर हम लर्निंग प्रोसेसेस, जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो बेसिकली जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज को, तो इस लर्निंग प्रोसेसिंग इनका फोकस बेसिकली ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है कि किस तरह ये लर्निंग मॉडल और इनको कंप्यूटर के साथ वो कैसे करते हैं, विच आर एस्टैब्लिश इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी 1960s में। और SLA का जो फिनोमिनन है ये बेसिकली इस फ्रेमवर्क पे है, जो असम्पशन करता है कि L2 जो है ना वो हाईली कॉम्प्लेक्स स्किल है, और लर्निंग 2 जो है ना वो बिल्कुल दूसरी कॉम्प्लेक्स स्किल की तरह उसी तरह नहीं है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स वो है। फिर प्रोसेसिंग इटसेल्फ ऑफ लैंग्वेज और एनी अदर डोमेन जो है ना, ये इनसे खुद बखुद बहुत लर्निंग आती है। बहुत सी अप्रोचेस टू SLA इस IP इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे है, जिनमें सेवरल जो है ना इंशाल्लाह वो चैप्टर 4 में डिस्कस की जाएंगे, और वो बेसिकली उनका बुनियादी स्पेशली वो द क्वेश्चंस किस तरह हाउ सम लर्निंग एक्वायर लैंग्वेज 2, यानी वो बेसिकली ये जो अप्रोचेस है ये हमें इस जवाब इस क्वेश्चंस का कि फॉर एग्जांपल हाउ लर्नर्स एक्वायर नॉलेज ऑफ L2 की, वो बेसिकली L2 का नॉलेज किस तरह हासिल करते हैं, और इसी तरह से वो हमें एक्सप्लेनेशन देते हैं फॉर सीक्वेंसिंग इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि हमने आपको सीक्वेंशियल बाइलिंगुअलिज्म हमने पढ़ी है। तो बेसिकली हम ये समझ लेते कि प्रोसेसिबिलिटी जो है ना, प्रोसेसिबिलिटी ये रिसेंटली डेवलप एक फ्रेमवर्क है जो कि IP कॉन्सेप्ट को, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग को मतलब आगे ले जाने के लिए है, और फिर उनको जो है ना वो टीचिंग सेकंड लैंग्वेज मतलब सेकंड लैंग्वेजेस पे अप्लाई करते हैं। मजीद फिर हम आगे जाते हैं कनेक्शनिज्म, ये इसी मतलब क्या है ये IP में हम डिस्कस इसको मजीद कर रहे हैं। कनेक्शनिज्म बुनियादी तौर पर एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है जिनका फोकस प्रोसेसेस पे है, ठीक है, जो कि 1980s में इसका स्टार्ट हुआ, और ये ज़्यादातर इन्फ्लुएंशियल हो रहा है क्योंकि ये जो जितनी भी आपको फ्रेमवर्क्स SLA पे नज़र आ रहे हैं, ये लैंग्वेज लर्निंग को मतलब नहीं कंसिडर कर रहे
کہ ان کا جو ہے نا یہ لینگویج لرننگ کو ایسا اسی طرح نہیں لے رہے ہیں